Hello students, how are you? Today we are going to start your lecture number 14, chapter number 1 and the fundamental of chemistry. So this lecture is consists of only numericals, exercise. Numericals of exercise are given, only total 10 numericals are there. Today we will solve the first five numericals. So numerical number 1 is given here. The sulfuric acid is the king of chemicals. If you need 5 moles of sulfuric acid for a reaction, how many grams of it will you weigh? So this is the numerical, and first of all we collect the data in this way. Number of moles of sulfuric acid 5 moles, and it is given, and molar mass of sulfuric acid. So I have told you in the previous lecture. So how can we calculate the molecular mass or molar mass? So sulfuric acid, it is the formula of sulfuric acid, 2 atoms of hydrogen and 1 is the atomic mass of hydrogen. So 2 into 1 plus 32 is the atomic mass of sulfur, and 1 is the atom of sulfur, and 4 atoms of oxygen, and multiplied by 16, because 16 is the atomic mass of oxygen. So when you calculate this one, 2 1s are 2, 32 1s are 32, and 64. So sum of all the weight is equal to 98 grams per mole. It means that 1 mole of sulfuric acid, that is equal to 98 grams. So mass of sulfuric acid it is required. So we have to find the mass of sulfuric acid in this way. Now we will use the formula here. Number of moles is equal to mass of sulfuric acid over molar mass of sulfuric acid. And generally I have already told you that 5 is the given, 5 moles of sulfuric acid are given. Mass of sulfuric acid we have to find, and 98 is the molar mass of sulfuric acid. So take this value to this side, and it will multiply by 5. So in this way mass of sulfuric acid is equal to 5 into 98, that is 490 gram. So 490 gram is the mass of sulfuric acid. Okay, everything, I think everything is clear. Now the second numerical is calcium carbonate is insoluble in water. यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पानी में soluble नहीं हो रहा होता है. If you have 40 grams of it, अगर आपके पास 40 ग्राम इसके दिए गए हैं, तो how many calcium ions and carbonate ion? This is the calcium ion and this is the carbonate ion, and are present in it. यानी इस कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम के आयन्स मौजूद हैं और कितने कार्बोनेट के आयन मौजूद हैं. तो हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो दिस इज द सॉल्यूशन. हियर mass of calcium carbonate का जो mass है that is 40 ग्राम, it is given. ये क्वेश्चन में गिवन है. फॉर्मूला mass of carbonate, कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल उसी तरीके से हम जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस हमने निकाला था, इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है. कैल्शियम आपको पता है कि ये 40 इसका एटॉमिक मैस है और 1 इसका एटम है. तो 40 into 1 plus 12 into 1 plus 3 into 16. So in this way atoms of oxygen are 3, carbon 1 atom, and calcium 1 atom. So when you take the sum of all the values, so that is equal to 100 gram. ये 100 ग्राम आया हमारे पास, 100 ग्राम पर मोल. सो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स आपने पहले फाइंड करनी है. न्यूमेरिकल को हल करने के लिए
नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट, तो और एवोगैड्रो नंबर you know that it is already calculated value 6.02 into 10 to the raised power 23. ये हमारे पास इसका जो एवोगैड्रो नंबर है, तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे अब नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जिस तरह हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ लिख दिया था, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसी तरह हम, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिख देना है, और मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओवर फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू Na। Na स्टैंड फॉर एवोगैड्रोस नंबर, Na स्टैंड फॉर एवोगैड्रो। ये फॉर्मूला सिर्फ आपने यहाँ पर वैल्यूज जो है एंटर करनी है, यही आपने फाइंड करना है 40/100 इंटू 6.02 इंटू 10 to the raised power 23। तो ये इस तरीके से जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर हमारे पास आया है 2.41 इंटू 10 to the raised power 23 फॉर्मूला यूनिट। अब ये फॉर्मूला यूनिट हमारे पास आ गए। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है यहाँ पर, तो इसकी आयंस की रेशियो जो 1:1 आई, ये आयंस रेशियो इसकी 1:1 आई है। तो ये कैसे देखते हैं कि यह रेशियो ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट आयंस इज इक्वल टू 1:1 है। और नंबर ऑफ कैल्शियम आयंस हम कैसे फाइंड करेंगे कि जितने हमारे पास ये आयंस आए फॉर्मूला यूनिट्स के, तो इसको हमने या फॉर्मूला यूनिट्स आए तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कैल्शियम के आयंस आ गए, ठीक है। और इसी तरह नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन, तो ये हमारे पास आए 2.41 into 10 to the raised power 23 into 1, so answer will be the same. So you can say the same number of ions are there in calcium कार्बोनेट, यानी कैल्शियम के आयन और कार्बोनेट के आयन जो है वो सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ यू हैव 6.02 into 10 to the raised power 23 ions of aluminium, how many sulfate ions will be required to prepare aluminium sulfate? तो स्टूडेंट्स इसमें न्यूमेरिकल में ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसमें एल्यूमिनियम के आयन उसने दे दिया है, तो आपने सल्फेट के आयन जो है ये फाइंड करने हैं। तो पहले नंबर पे हम यही करेंगे कि नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस दैट इज इक्वल टू 6.02 into 10 to the raised power 23 ions. These are the ions of aluminium, and ratio of aluminium ions and sulfate ions in aluminium sulfate. ये हमने इसकी रेशियो देख लेनी है, फाइंड करनी है कि देखते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट का यहाँ पर फॉर्मूला है 2 atoms of aluminium and 3 सल्फेट आयंस जो है ये हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 2 एल्यूमिनियम आयंस एंड 3 सल्फेट आयंस। तो इस तरीके से हमने रेशियो यहाँ पर फाइंड कर ली है, और रेशियो में अब हमारे पास कि ये वाली जो वैल्यू है ये गिवन है यहाँ पर। लेकिन अगर हम एक जी एल्यूमिनियम के आयंस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जो दिया हुआ है, और ये इसका जो नंबर ऑफ आयंस जो ना ये टोटल बताए हुए एल्यूमिनियम के, तो यहाँ पर हम एक एटम का जो एक आयन का जो वो एक एटम के जो आयन है वो फाइंड कर ले। नंबर ऑफ आयन 6.02 into 10 to the raised power 23 डिवाइडेड बाय 2। सो जब हमने इसको इससे कैंसिल किया तो 3.01 into 10 to the raised power 23 आयंस जो है ये हमारे पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ सल्फेट आयंस जो है ये एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस है, तो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस इज इक्वल टू 3.01 into 10 to the raised power 23 into 3, और जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9.03 into 10 to the raised power 23 आयंस जो है ये आ जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा जो
न्यूमेरिकल नंबर 3 था और इसमें नंबर ऑफ सल्फेट आयन हमने फाइंड किए थे और नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन्स आर गिवन. So next question number 4. Calculate the number of molecules of the following. 16 grams of carbonic acid. H2CO3 is the formula of carbonic acid. B. 20 gram of nitric acid. This is the nitric acid. And 30 gram of glucose. C6H12O6. ये फॉर्मूला ग्लूकोज का है, ये फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का है और ये फॉर्मूला जो है कार्बोनिक एसिड का है. यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है कार्बोनिक एसिड. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो चीजें डेटा में हमने लिखनी है वो गिवन जो पहले हमें दिया गया है, गिवन मास ऑफ कार्बोनिक एसिड दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम. मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड बिल्कुल सेम उसी तरह जो से मॉलिक्यूलर मास आपने फाइंड करना है. 2 into 1, 12 into 1, 3, 16 into 3. ऑक्सीजन 16 है, इसके 3 एटम्स हैं. इस तरीके से मैंने बार बार आपको बताई जाता हूँ कि ताकि आपको ये कैलकुलेट करने का जो मेथड है ये समझ आ जाए. इसलिए 2 1 2, 12 and 16, 3 are 48, सम लिया तो 62 ग्राम पर मोल. एवोगाड्रोस नंबर इज इक्वल टू Na 6.02 into 10 to the raised by 23 molecules and number of carbonic acid molecule you have to find. So formula is number of molecules of carbonic acid is equal to mass of carbonic acid divided by molar mass of carbonic acid into Na Avogadro's number. देखें अब यहाँ पर हमने वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है. तो 16 जो है ये गिवन है और 62 जो है यहाँ पर हमने कैलकुलेट की है अभी ये वाली वैल्यू और ये भी आपके पास गिवन है एवोगाड्रो नंबर की. तो पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इससे डिवाइड किया या इसको इससे डिवाइड करके तो इससे मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर जो है 1.55 10 to the raised by 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. तो स्टूडेंट इसी तरीके से बाकी के दो जो न्यूमेरिकल है अभी हम इसको भी करते हैं. 20 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज 20 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड. सो इन द सेम वे we have already done that given mass of nitric acid that is 20 gram, molar mass of nitric acid is equal to 63 gram and Avogadro number you know that this is the also calculated value 6.02 into 10 to the raised by 23 and number of molecules of nitric acid we have to find. This is the question. हमने ये यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है number of molecules of nitric acid, mass of nitric acid divided by the molar mass of nitric acid into Na Avogadro's number. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज को एंटर करना है और यहाँ पर हमने वैल्यूज जो है ये एंटर कर दिया है और ये हमारे पास आ जाएगा 20/63. 20/63 into 6.02 into 10 to the raised by 23. जब इसको हमने कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके 63 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1.91 into 10 to the raised by 23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. सी पार्ट इसका ये अगर देखें तो हमारे पास 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. तो 30 इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल हमने फाइंड करने हैं. गिवन मास ऑफ ग्लूकोज 30 ग्राम ये दिया गया. मोलर मास आपने फाइंड कर लिया, ये 180 है. कितना है कैलकुलेट करके इसको हमने 180 ग्राम पर मोल आ गया. और नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर ये भी दिया गया है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आपने फाइंड करने हैं. मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इनटू Na and putting the or substituting the values 30 into 6.0202 into 10 to the raised by 23 divided by 180.
जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये 1.00 into 10 to the raised power 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये स्टूडेंट्स आज जो हमने 4 न्यूमेरिकल्स जो है ये की है। तो अभी टाइम कम होने की वजह से जो है मैं अपने इस लेक्चर को थोड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ। तो बाकी जो नेक्स्ट टाइम है लेक्चर नंबर 15 में हम बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये लेक्चर आज न्यूमेरिकल्स का पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इनवाइट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।